कल यानी 13 अक्टूबर 2025 शिक्षक बंधुओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस लगा हुआ था जो कि शिक्षक बंधुओं से संबंधित था। त्रिपुरा राज्य वर्सेस सजल देव, यह केस कल सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड था, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। इस केस में त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दिया था जिसमें त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कहा था कि 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट देने की जरूरत नहीं है, अर्थात उनको टेट से मुक्त कर दिया गया था। इसी आदेश की चुनौती त्रिपुरा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, जिसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में हुई। हालांकि नोटिस के बाद कल पहला तारीख था, जिसमें जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत ज्यादा सुनवाई होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें अभी रिस्पोंडेंट्स का रिप्लाई, रिजॉइंडर, एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट आना अभी बाकी होगा। इसलिए कल की सुनवाई पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं था। लेकिन कल जो कोर्ट में चर्चा होनी थी और कोर्ट का रुख जानना था, जजों के मिजाज को पहचानना था, कल की सुनवाई से इसका अंदाजा अवश्य लगाया जा सकता था। कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, आप पहले ये लाइव वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। There are some review petitions which have been filed, we are told, by the states. by some of the States have filed it. aggrieved teachers, because they are given them 2 years time to qualify in the case. Yes. We have given 5 years in our scheme. More than what your lordships are giving. No, but you may have given 5 years, that 5 years have concluded. No, but that scheme has come in 2022 to will not give effect to the judgment rendered in 2021 in the first round of this case. Then will not frame this scheme. Everything else was accepted, only this clause category 3A people who had not passed. So we said, we will provide you training to give the test. We will give you 5 years, and otherwise everything else will remain the same. So that 5 years is going to expire in 2027. So there are 2 years more, we not even as far as No, we have given time. The judgment was delivered on 1st September, so 31st August of 27. So here, 5 years will expire in 27. Well, we have some sufficient. I beg to intervene. Well, we have some submissions as far as the 2010 notification is concerned. Your Lordship will consider that. But I do believe that some people haven't been served notice yet. Well, your Lordships Yes, the office report shows that everybody has not been served. That is true, and also I understand that they have filed some counter which we have not received. Some counter affidavits have been filed, so we could file our rejoinder. But we are saying that this judgment, the second part, first part is the reference regarding minority institutions. The second part, we are not concerned with the first part. We are concerned with the second part, and second part covers our case, in our respectful submission. My friend, the only point, my lord, I would beg to make before your Lordships, my lord, that your Lordships, my lord, had noticed, my lord, in that case, my lord, the provisions of the NCTE Act, and my lord, thereafter, my lord, there is no finding with respect to Section 12 Cap of the NCTE Act. If your Lordships, my lord, can you see, my lord, the judgment of your Lordships? And incidentally, my lord, in that judgment, my lord, three previous judgments of your Lordships were noticed. My lord, the very purpose of amending Section 12A, my lord, we have referred to in our counter, my lord, that we have filed, that only with a view to, my lord, override the judgment of this court in Upendra Rai, my lord, the Parliament had amended Section 12A, so to say, my lord, inserted Section 12A, just to obviate, my lord, that the NCT did not have the competence, my lord, to make legislations with respect to schools, have now been incorporated by virtue of this. And, my lord, it has been effected from 1/6/2012. NCT is the examining body, so therefore it was necessary to confer power on the NCT under the NCTE Act. But My lord, that power is our judgment was on interpretation of Section 23. exactly. RTE Act. Exactly, my lord. The interplay of By the second proviso to 23, which was incorporated later. my lord.
My lord, what I would beg to pray before your lordships, my lord, if your lordships kindly put up the matter on a non-miscellaneous day, on a farm day, my lord. We keep it on. All that we are respectfully submitting it, we treat the service. We'll file a rejoinder, we'll endeavor to make all the service which is on when. And they are given an undertaking, they will not press for the contempt. My lord, your lordships, my lord, can you record the words, my lord? The contempt was moved, and my lord, I made a submission before the court. Yeah, 90. We are not granted leave, no? No. Right? Wednesday, after leave कितने होगा? If we direct to come 19th at 2 o'clock. 19th November, my lord? Yes, in the meanwhile, state of Tripura shall take steps for taking service from the respondents who are yet to be served. And we are also permission to file a rejoinder within 2 weeks. Take counter for those who have not filed so far. My lord, in the first matter, my lord, I have filed my counter, my lord. No short of the If not filed, may be filed by 2 weeks. Rejoinder affidavit to the counter affidavits which have already been filed and which may be filed in terms of the liberty granted above, may be filed by the petitioners by 14th November. deeply obliged, my lord. I'm so grateful. I'm so grateful. तो आपने यह क्लिप देख लिया होगा और यह मैटर कल कोर्ट में लगभग 10 मिनट तक चला, जिसमें बहुत कुछ मटेरियल तो नहीं हुआ लेकिन कुछ बातें निकल कर आई। कल हियरिंग में जो बातें निकल कर आई वो मुख्य रूप से 3 बातें हैं। मामला की शुरुआत रिव्यू पिटीशन से हुआ कि बहुत सारे रिव्यू पिटीशंस पेंडिंग है, कुछ रिव्यू पिटीशंस राज्य सरकारों द्वारा डाला गया है, कुछ शिक्षक संघ द्वारा, इसकी सुनवाई होनी बाकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ऑलरेडी टेट पास करने के लिए सभी शिक्षकों को सफिशिएंट टाइम 2 साल का दे दिया है। इसके बाद इस पर और कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा मुद्दा जो उठा वो कि त्रिपुरा सरकार ने संविदा शिक्षकों को जो नियमित किया था उनको 5 साल का समय दिया था टेट पास करने के लिए। तब बात आई कि त्रिपुरा सरकार ने उन शिक्षकों को 5 साल का जो समय दिया है 2022 में, वो 2027 में समाप्त होता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें 2 साल का एडिशनल मोहलत दिया है वो क्या 27 साल के बाद ऐड होगा, अर्थात उन शिक्षकों के लिए यह पीरियड 2029 तक का है। चूंकि 2022 में उन शिक्षकों को सरकार ऑलरेडी 5 साल का समय दिया हुआ था जो कि 2027 तक समाप्त होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें 2 साल का ही समय दिया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का 2 साल का एडिशनल जो टाइम है उसका लाभ उन शिक्षकों को नहीं मिल पाया। इस पर कोर्ट ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं किया। कोर्ट ने केवल यह कहा कि चूंकि जजमेंट 1 सितंबर 2025 को डिलीवर किया गया है और इस हिसाब से 31 अगस्त 2027 तक यह अवधि समाप्त हो जाता है, इस बीच में सभी को टेट पास कर लेना चाहिए। इसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट का और कोई प्रतिक्रिया नहीं था। इसके बाद तीसरा मुद्दा जो कोर्ट में उठा था वो एनसीटीई को लेकर था कि एनसीटीई का 2010 का नोटिफिकेशन और उसका सेक्शन 12 के बारे में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एनसीटीई जो पावर कन्फर करता है, जो पावर उनको मिला हुआ है वो एनसीटीई एक्ट के तहत मिला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो यह जजमेंट सुनाया है वो आरटीई एक्ट के तहत सुनाया है। आरटीई की धारा 23 और 2017 में उसमें किए गए अमेंडमेंट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से यह निर्णय सुनाया गया है। इसके बाद बहुत ज्यादा चर्चा और कोर्ट में नहीं हुआ, कुछ ऐसे आदेश नहीं हुए जो कि रिकॉर्ड पर आ सके। अभी तक बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स को सर्व नहीं किया गया था, अर्थात बहुत सारे रिस्पोंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं हुए थे। इसके बाद सभी रिस्पोंडेंट्स को दोबारा सर्व करने के लिए उनको अपना रिप्लाई, रिजॉइंडर, एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट फाइल करने का समय दिया गया।
कोर्ट की अगली तारीख 19 नवंबर दोपहर 2 बजे के लिए फिक्स किया गया। इस बीच में 14 नवंबर तक सभी पक्षों को अपना रिप्लाई, रिजॉइंडर, एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट फाइल करना होगा। इसमें एडवोकेट्स ने यह रिक्वेस्ट किया था कि मैटर को नॉन मिसलेनियस डे लगाया जाए, अर्थात उस दिन लगाया जाए जिस दिन इसकी फाइनल हियरिंग हो सके, कोर्ट के पास समय हो। यदि कोई भी मैटर मिसलेनियस डे लगता है तो उसमें मिसलेनियस केसेस को सुलझाने में ही इतना वक्त निकल जाता है कि किसी भी केस का फाइनल हियरिंग के लिए समय नहीं बचता है। इसलिए कोर्ट में रिक्वेस्ट किया गया कि मैटर को नॉन मिसलेनियस डे लगाया जाए। उसके आधार पर 19 नवंबर का दिन तय किया गया और 2 बजे का समय, अर्थात उस दिन इस मैटर पर विशेष रूप से, बृहद रूप से चर्चा होगी और उस पर कोर्ट का फाइनल आदेश आने का उम्मीद होगा। अब हम समझते हैं कि आखिर टेट अनिवार्यता को लेकर जज दीपांकर दत्ता इतना एडामेंट क्यों है। कोर्ट का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, अर्थात जो आरटीई एक्ट की धारा 23 है और उसमें जो 2017 में अमेंडमेंट किया गया था, जस्टिस दीपांकर दत्ता का फोकस केवल वहां तक है और उसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ही वो निर्णय दिया गया है और जो भी निर्णय आएगा वो इसी आधार पर किया जाएगा। कल के इस सुनवाई को, जैसा कि हम टेट के मामले को लेकर सेमीफाइनल समझ रहे थे, उस सेमीफाइनल से जो रिजल्ट निकला है वो यह है कि अब आने वाले समय में जो रिव्यू पिटीशन लगने जा रहा है उसमें भी अब कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि जब जब आरटीई एक्ट की धारा 23 और साथ में 2017 का अमेंडमेंट साथ में जुड़ेगा तो इंटरप्रिटेशन उसका यही होगा कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक है। हल यह है कि अमेंडमेंट 2017 पर ही वार किया जाए और जब तक अमेंडमेंट 2017 में कोई सुधार नहीं होता है तब तक इस इशू को सुलझाना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि चाहे जज कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट का किसी भी पीठ में इसकी सुनवाई की जाए, यदि आरटीई की धारा 23 और उसमें 2017 में किए गए अमेंडमेंट को कोई भी जज इंटरप्रेट करेगा तो रिजल्ट लगभग समान आएगा, क्योंकि अमेंडमेंट 2017 में ही सबसे बड़ी खामी है। बहरहाल उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में अभी रिव्यू पिटीशन भी उसी बेंच में लगना है और 19 नवंबर को इस केस की उसी कोर्ट में फाइनल हियरिंग भी होनी है। अब हम लोगों को उस समय तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इन बिटवीन शिक्षक संघ ने सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए विभिन्न तरीके के जो हथकंडा अपनाया है, अपना यूनियन को मिलाकर बड़ा किया है और बड़े स्तर पर इसका विरोध करने का जो मन बनाया है वो बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इस प्रेशर में सरकार उस अमेंडमेंट को ठीक कर सकेगी और जैसे ही 2017 का वो अमेंडमेंट ठीक हो जाता है बाकी शिक्षकों के लिए रास्ता खुल जाएगा। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।